with extra care and concern. It is highly related to trust in the field of healthcare. The association between people belonging to the pharmacy field and the patients is very important. Healthcare is the most sensitive. A very big thanks to all the scientific community, researchers, and pharmaceutical community just because of their hard work, love, and care toward the human species. Just because of them, the helping hands of the pharmacist, especially during the pandemic and worth mentioning. So it is important to give respect and pay tribute to the selfless services of pharmacists across the world. Now, through this, I would like to give rest to my speech. Thank you. Thank you so much. Now, I would like to call Era ma'am for their speech on topic called branded drugs and generic drugs. So give a huge round of applause for Era ma'am. Good afternoon, everyone. Respected principal, ma'am, teachers, director sirs, chief guests, and my dear friends. Myself, Era Fatma. I am pursuing B Pharma, second semester from this college, Usman Institute of Pharmacy. I am extremely glad to have this opportunity to deliver the speech on this big day on this topic, branded drugs or generic drugs. Generic branded name and generic drugs contains the same active ingredient, so the characteristic of the drugs, not affecting the safety or efficacy, but it may be different in their appearance, only states trademark. Laws do not allow generic drugs to look exactly the same as the equivalent brand name drugs. However, the extent of this difference is regulated after expiration of the patent. Any company may produce the drugs like this abbreviated new drug application, demonstrated required equivalence, and with FDA. Applicable market the drugs as a generic product without paying license fees to original owner. Manufacture of the generic drugs are not involved in extensive clinical trials of drug, is less and are therefore cheaper. Generic drugs are not proper in India because everyone attracted to the fancy branded names, the generic medicine, but there are also reasons to the which we'll discuss further. Government is also lenient, having laws in GBD, channel composition, recall, or chemical composition of combination drugs, which is better, branded or generic. So branded drugs are considered to be better because of their officially quality unveiling of the attitude and intentions of consumers towards there are regarding healthcare, but talk about generic drugs most of lower and middle class. Thank you so much. The drama first team members Lav Kumar, Kundan Kumar, Chandrasekhar, Brij Kishore, Avinash, begins.
मैं बर्बाद हो गया, मैं टूट गया, किसके बिना में रहेंगे? एक लौता बेटा था। हाँ सर, चैम्बर खाली है, भेज दीजिएगा। ओके। हेलो, हाँ सर, मैंने मीटिंग में तो बोल दिया था सब, लेकिन सर कुछ हॉस्पिटल में ऐसी बातें होगी जिसके लिए मीटिंग को पोस्टपोन करना पड़ा। हाँ हाँ, मैं हॉस्पिटल आ गया। ठीक है, ओके सर, गुड मॉर्निंग। ये फिर से आ गया, गाल निकाल इसको। क्या कर रहा है यहाँ पे पापा? एक तो फ्री पेमेंट नहीं करता, यहाँ पे आ जाते। चलो निकलो, गाल निकालो, भगा इसको, भगा इसको। कहाँ से चले आते हैं लोग? चले, निकाल इसको बाहर, ये लगा के रखो यहाँ पे, निकाल इसको, निकाल इसको। उसके बाद पता नहीं सर, सुबह देखते मरा होगा। फार्मासिस्ट को बुलाओ। रिसेप्शनिस्ट डॉक्टर साहब बुलाएं, फार्मासिस्ट को डॉक्टर साहब बुलाएं। कल जो वो ये बना वो आ चुका है, वो मर गया, लेकिन उसके इलाज में बहुत पता नहीं चल रहा था। ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन वो मतलब बिल्कुल सही था, ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे लग रहा है कि पेशेंट अंदर गया। सर ये तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा हो कैसे सकता है? हम लोगों ने दवाई बिल्कुल तो प्रॉपर ढंग से दिया था, सही मेडिसिन दिया गया था, सही समय पर हमारे सारे जांच में काम किया था, लेकिन सर हमको ये बात समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा आखिर इंसान हो कैसे सकता है? जब हम लोग बिल्कुल सही काम किया है, सही दवाई दिया है, सही समय पर दिया है, सही डोज दिया है, तो फिर भी सर ऐसा घटना कैसे हो सकता है? सर ये मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है। तुम चुप रहो, नर्स तुम तो थी ना, तुम तो प्रॉपर तरीके से दवा दी ना। सर रात तक तो इसका ट्रीटमेंट सही चल रहा था, हाई फीवर की वजह से मैंने इसे एंटीबायोटिक आईवी इंफ्यूजन दी थी, फिर उसके बाद 8 बजे सुबह से अजीब इसका पूरा बॉडी रेड पड़ गया, पसीना आने लगा, और आश्चर्य की बात तो ये है सर कि इसके मुंह से झाग आने लगा, उसके बाद सर कुछ समझ नहीं आ रहा है सर। सर सच मेरे समझ से लगता है सर कहीं से सर जो उसको दवा दिया गया था, तो सर कहीं इसका दवा का रिएक्शन तो सर नहीं कर गया। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इसको आप जब ये डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए इसको भेज दो। सर पोस्टमार्टम की क्या जरूरत है सर? मामला रखा दफा करते ना, हॉस्पिटल का ऑपरेशन का सवाल है सर। नहीं, हम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते सर, हम लोग का अक्सर कैरियर सर मदद करते हैं ना सर। नहीं कैसे बोल सकते हो कि इसका डेथ रिएक्शन से हो सकता हो जहर खा गया? नहीं बोल सकते, इसका सबसे पहले जरूरी है रफा दफा करते हैं ना। नहीं रफा दफा नहीं, पोस्टमार्टम के लिए भेजो, तभी इसका क्लू निकल पाएगा कि
हुआ क्या। इस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। चलो अब थोड़ा लास्ट को पोस्टमार्टम के लिए इसकी भेजा जाए। अब जो रिपोर्ट आता है उसके अनुसार हम लोग काम किया जाएगा। विजय सन करिए यहाँ पर। उठिए, उठिए सन करिए, उठिए, करिए सन, सीधे सन करिए, करिए यहाँ पे, करिए सन करिए यहाँ पे, सीधे करिए सन, करिए थप्पा दीजिए यहाँ पे, थप्पा दीजिए, चलिए ले जाइए। अब देखो इसका एक ही इलाज है कि इसको एडीआर फाइल करना पड़ेगा। लाश को पोस्टमार्टम कराने के बाद अब इसको एडीआर फाइल करना पड़ेगा, जिसको एडवर्स ड्रग रिएक्शन बोलते हैं। ठीक, अगर कोई पेशेंट की डेथ हो जाती है तो हम बिना क्लू निकाले उसका कोई समाधान नहीं कर सकते हैं। अगर कोई बोले कि इसको ऐसे जाने दो, फेंक दो, नहीं, इसका भी कहीं ना कहीं उपाय है। इसका एक ही उपाय है एडीआर फाइल, जिसको एडवांस ड्रग रिएक्शन। इसमें होता क्या है एडीआर फाइल कि ये फार्माकोविजिलेंस और सीडुस्को के थ्रू एक फॉर्म भरी जाती है, जिसमें पेशेंट जिसका डेथ हुआ उसका पेशेंट का पूरी हिस्ट्री, साइड इफेक्ट या कोई गलत दवा तो नहीं खा लिया हो, ये इसके पहले से कुछ हुआ नहीं हो, किसी डायग्नोसिस का पता करके तभी इसका कोई उपचार होता है। और ऐसी जानकारी मिलने के बाद हम लोग मेडिकेशन जो होता है उसको हम रोक देते हैं कि ताकि आने वाले टाइम में दूसरा पेशेंट का डेथ ना हो। थैंक यू। और एक चीज और, एडीआर फाइल 3 तरह के आते हैं। देखिए, ये जो एडीआर फाइल होता है वो ब्लू कलर का होता है, जो सीडीस्को फाइल होता है वो रेड कलर की होती है, जिसमें पूरी हिस्ट्री, पेशेंट का कब डेथ हुआ, टाइम टेबल, कब एडमिट हुआ और उसका दवा कौन सा दिया गया था, कौन दवा खाने, मरने से पहले कौन दवा खाया था, सारी इसकी हिस्ट्री भरी जाती है। और सबसे बड़ी चीज, अगर ऐसी केस हो तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 1800-180-3024। थैंक यू। काम करने का बहाना ढूंढता है जमाना, मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम। पहले मेरा नाम तो होने दो, पहले मेरा नाम तो होने दो। चलिए इसी के साथ जो है, नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट वारिस, प्लीज कम ऑन द स्टेज। B.Pharm, second semester from this institute. As we know, today is World Pharmacist Day, and on behalf of this day, I give my view on the topic Sun Pharma Industries. So, Sun Pharmaceutical Industries Limited on Indian multinational pharmaceutical company headquartered in Mumbai that manufactures and sells pharmaceuticals, formulation and active pharmaceuticals ingredients is more than 100 countries across the globe. So, Sun Pharmaceuticals was founded by Dilip Sangvi in 1983 in Gujarat with 5 products of trade psychiatry agents. It is the largest pharmaceuticals company in the India and the 4th largest specialist generic pharmaceuticals company in the world. The 2014 acquisition of Ranbaxy made Sun Pharma the largest company in India
pharma company in the United States and the fourth largest specialist generic globally. So Sun Pharma was listed on stock exchange in 1994 in issue oversubscribed 55 times. The founding family continues to hold 9 majority the company. Thank you. A very warm good morning to our respected chairman, chief guest, principal, and loving teachers, and here sitting everybody. First of all, I would like to thank you for giving a chance to speak a few words. I feel so glad to come to this place in front of today. I feel like I'm on cloud 9. So audience, as we all know the significance of today's program, and that's well known, it is World Pharmacist Day. So without wasting a single second of this precious moment, I want to come to the point. But just after permission, so may I start, ma'am? Now I shall start my word with my intro. Hi everyone, this is Ali Hussain. Basically, I belong to Mansahi Katihar in Bihar. Nowadays, I am a second semester B.Pharm student in Kusumraj Institute of Pharmacy. Today's my topic is COVID-19. What is COVID-19? COVID-19 full form is coronavirus disease 2019. Coronaviruses are a group of viruses belonging to the family of coronavirus, which infect both animals and humans. Disease similar to a common cold. The virus is called SARS-CoV-2 and is a new strain that has not been previously identified in human beings. So very fast the problem, humans have no superior immunity. We do not have any vaccine, we do not have antiviral drugs to treat the virus. Coronavirus at first case of COVID-19 was reported 1st December 2019 in China, and the cause was then a new coronavirus later named SARS-CoV-2. And animals and change mutated so it could cause illness in humans. In the past, several infectious disease outbreaks have been traced to viruses. Viruses originating in birds, pigs, bats, and other animals that mutated to become dangerous to humans. Human research continue, and more study may reveal how and why the coronavirus evolved to cause pandemic disease. Its signs and symptoms include respiratory system and include fever, cough, and shortness of breathing, muscle pain, tiredness. In more severe cause, infection can cause pneumonia, severe acute syndrome, and has caused millions of deaths around the world, as well as lasting health problems in some who have survived the illness. So, audience, how to protect yourself from coronavirus? Best way to protect yourself is to get vaccinated and boosted. When you are eligible, follow testing guidelines, wear a mask, wash your hand, and practice physical distancing. I pray that we all stay healthy and energetic.
We are always proud to be a pharmacist because pharmacists are the unsung hero of our country, and we have all seen their role and contribution during the difficult time of the pandemic. So let us honor all of our pharmacists and wish them a very, very happy World Pharmacist Day. That's all. Thank you. Thank you for giving us the information regarding to COVID-19. इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आप लोगों के साथ एक शायरी में कोई शब्द कहता हूँ। शीशे का प्याला कभी उछाला नहीं जाता, मेहनत से संवर जाती हैं जिंदगियाँ, मेहनत से संवर जाती हैं जिंदगियाँ, हर काम तकदीर पर डाला नहीं जाता, हर काम तकदीर पर डाला नहीं जाता। Good morning, all of you. Myself, Anushka Bharti, pursuing B.Pharm second semester, Kusumraj Institute of Pharmacy. Respected Chairman Sir, Director Sir, Principal Ma'am, Chief Guest, all faculties, and my dear friends. I wish you a very happy World Pharmacist Day. Today I am here to give my views in front of you on AIDS. AIDS is a very dangerous disease called as acute immunodeficiency syndrome. So the cause of AIDS is HIV virus, which is retrovirus, which directly attacks on DNA or RNA. It decreases the T cell count in blood. AIDS is celebrated 1st December of every year. AIDS is celebrated on 1st December every year. This virus has been first observed in African chimpanzee. This is sexually transmitted that can be through contact with infected blood, sewage, vaginal fluid from mother to child during pregnancy. AIDS requires a medicinal diagnosis within a few weeks of HIV, internal flu-like such as fever. Its main symptoms include weight loss, night sweats, infections. Treatment consists are HIV, dramamine slow, exists for AIDS, but can the disease process of will as well consist include the complexation. So because of such types of disease include such that types of disease we can build our life and health. That's all. Thank you. Bollywood dance performance. Give him a great round of applause. द्वारा प्रस्तुत किया गया है हम लोगों के समक्ष। Please keep silence, please. Backbenchers, I request you all, please don't
make noise. मैं चंद शब्द आप सभी के समक्ष रखना चाहता हूँ. प्लीज बी थिंक अबाउट इट. सिर्फ सुनना और सही मायने में उसको सुनना तभी होता है जब आप उसको सुनते हो और उसको इम्प्लीमेंट करते हो अपनी लाइफ में. सिर्फ सुनना ज़्यादा नहीं होता. सो प्लीज आप उसे सुने ही नहीं, सिर्फ उसे ध्यान से सुने कि मत कर परवाह उनकी जो आज देते हैं ताना. मत कर परवाह उनकी जो आज देते हैं ताना. झुका देंगे ये सर जब आएगा जमाना. लहरें बन जाए तूफान, कश्ती का काम है बहना. लहरें बन जाए तूफान, कश्ती का काम है बहना. कुछ तो लोग कहेंगे क्योंकि लोगों का काम है कहना. अभिजीत राय के द्वारा. बना दूं मैं अपना खुदा, सजदे तेरे कर सकूं. मांगूं दुआ साथ होने की, तेरे कांधे पे सर रख सकूं. खागा एक बात तुझको मन्नत बना दूं, कागज पे दिल के तेरी सूरत बना दूं. छोटे कभी So drop it low, man. देखा जो बेबी तेरा नखरा तो दिल ये बोले, नखरा लगे है टोटल बंखरा तो दिल ये बोले. मुझको जो भाती है जवानियाँ, मस्ती लुटाती जिंदगानियाँ. And the names of the students which are participated is Gaurav, Avinash, Vikas, Chandan, Anushka, Sujit, Love, Kundan, Rocky, Navneet, Israfil, Ritu. To please come on the stage. Please. दिल्ली से बहुत परेशान थे, जिसका नाम कोरोना वायरस था, जिसमें लोग एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे, ना देख पा रहे थे, ना एक दूसरे से आपस में बात कर रहे थे. ये एक ऐसा आफतकालीन आया हमारे देश में कि एक टाइम के लिए तो लगा कि शायद मैं कब मर जाऊं, कब क्या हो जाए मुझे, कब किसका कॉल आ जाए, कुछ पता नहीं चलेगा. हर दिन, हर वक्त, हर टाइम लोग डरे 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 चलते जा रहे थे. इस महामारी में कुछ लोग बिना खाए मरे, कुछ लोग बिना उपचार के, किसी ने तो सोच सोच के एकदम तोड़ दिया. तो इस महामारी से हम लोग जो जूझ चुके हैं, हम इस नाटक के मन से समझेंगे. दृश्य 1.
डॉक्टर डॉक्टर जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि ये थर्ड दृश्य में पता ना क्या हो गया। लोग कोई डॉक्टर से नहीं मिल पा रहा है, कोई बोल नहीं पा रहा, या कोई हमारे गांव में चाहे तो ना बोलते हैं या ये बोल सकते हैं। अगर कोई बात डॉक्टर के सामने पेश करता तभी इसका कुछ समाधान निकलता। ये हो क्या गया कुछ समझ में नहीं आया। और क्या इसके बारे में हर जगह पे डॉक्टर आपस में बात करेंगे या नहीं करेंगे, इसके बारे में लगता है कोई क्लू निकल नहीं पाएगा। अब तो लगता है कि हर जगह यही महामारी चलेगी। किसी ने खांसते हुए मर गया तो किसी ने बिना बोले हुए मर गया तो बिना कुछ समझे हुए। और सबसे बड़ी हैरानी की बात ये है कि जो डॉक्टर है वो मर चुके थे, उनके साथ असिस्टेंट मर गया। क्या ये क्लू नहीं हो सकता है? या हमारे देश के कोई डॉक्टर बता सकते हैं, या हमारे देश का कोई साइंटिस्ट बता सकता है, या हमारे इस भारत देश में एक छोटा सा राज्य बिहार में कुसुमराज इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी के स्टूडेंट पता कर सकते हैं ये क्या है? मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं कुसुमराज इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी के ये स्टूडेंट जरूर पता लगा पाएंगे। मुझे ऐसा विश्वास है, भरोसा है। ये जो महामारी से हम लोग झेल रहे हैं, इसका लग रहा है कि ये एक चमत्कार है, जादू टोना है। ऐसे हमारे गांव में तो जादू टोना ही बोल सकते हैं। इतना जल्दी मरता कौन है? कोई नहीं मरता इतना जल्दी। 1 मंथ 2 मंथ या बीमार पेशेंट या जिसका एज हो गया है तभी मरते हैं। लेकिन ये जैसी महामारी हम लोग देखें इसका कुछ पता ही नहीं लगा सकते हैं। ये हो क्या गया? और इसके बारे में तो लगता है शायद हमारे देश के डॉक्टर कुछ पता लगा, कुछ कहें, कुछ समझें। हम इसको 20 सेकंड से समझेंगे कि अब कोरोना महामारी में आगे क्या होती है। फर्स्ट स्टेज तो यही हुआ था हमारे देश में या हर जगह कि पेशेंट तो मर रहे थे, लोग मर रहे थे, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा था कि हो क्या रहा है, कैसे मर रहे हैं। अब इस सेकंड दृश्य से हम लोग समझेंगे कि क्या हो रहा है। डॉक्टर, साइंटिस्ट, रिसर्चर पता जरूर लगाएंगे, ठीक? इसको हम सेकंड दृश्य से
कि फार्मासिस्ट रिसर्चर इस काम में लग गए हैं। तो फार्मेसी के एक स्टूडेंट ने भी इस पे बात की, वार्तालापें की है बाहरी के डॉक्टरों से, और क्या होता है हम लोग समझेंगे। क्या इसका पता लगा सकता है या नहीं लगा सकते हैं कोई? सबसे बड़ी बात थी, बड़ा देश दुबई, अमेरिका, जापान, इंडिया, ये हर जगह के डॉक्टर आपस में वार्तालाप कर चुके हैं। और मुझे क्या पूरी देश से भरोसा है कि इसका बहुत बड़ा समाधान निकल सकता है। अगर सब लोग की यही सोच है कि अगर इसकी समाधान न निकले तो क्या होगा। ऐसा डॉक्टरों की टीम से बाबूराजों से पता लगा है कि ये पैंडेमिक है, इंडेमिक्स है। ये पैंडेमिक्स क्या होता है, इंडेमिक्स क्या होता है, क्या हमें इसके बारे में जानना चाहिए या नहीं चाहिए? खैर मुझे तो लगता है इसके बारे में हमें क्या, सारे डॉक्टरों को, सारे लोगों को इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है कि पैंडेमिक्स क्या होता है, इंडेमिक्स क्या होता है। अगर हम लोग इसके बारे में नहीं समझे तो इसके कोई उपचार नहीं हो सकता है, कोई समाधान नहीं निकल सकते हैं। इसे हमें समझना बहुत ही जरूरी है। ये क्या था, आपस में डॉक्टर बात किए, WHO ने बताया कि ये पैंडेमिक था, इंडेमिक था, कुछ देर में पता चल जाएगी, इसका रिएक्शन आएगा। अब आगे जाने के लिए हम लोग इसका तीसरा दृश्य में समझेंगे। डेथ हुई है, ये भी एक पेशेंट है, इनकी डेथ हो चुकी है। हमारे सबसे बड़ी दुख की बात कि हमारे इस सामाजिक परंपरा से बहुत ही अलग हो रहे हैं। कोई डेथ करता था, मरता था तो लोग मिलने जाते थे, लोग समझने जाते थे, पूछने जाते थे ये क्या हो गया, कैसी बीमारी है। इनका कुछ पता नहीं है कि इनके घर के लोग हैं या नहीं भी हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। अब हम इसे तीसरा दृश्य से ही समझेंगे कि अब आगे क्या होता है, क्या इसका कोई उपचार निकल पाएगा। हैं कि हर 100 साल 1000 साल बाद ऐसे पैंडेमिक्स आते रहते हैं, जाते रहते हैं, होते रहता है, लेकिन इसका हम लोग समाधान निकालना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अगर ऐसे होते रहे हमारे देश में, पूरी कंट्रीज में कोई भी लोग नहीं बच पाएंगे। ये बिल्कुल हमारे सामाजिक से पारंपरिक है। हम लोग ऐसे भी देखें, ये पेशेंट दफना दिया जाएगा कि फेंक दिया जाएगा, इसका क्या होगा ये कुछ नहीं बता सकते। ये तीसरा दृश्य से पता लगेगा। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं तीसरा दृश्य में, जो हमारी इंडिया के परंपरा से कहीं न कहीं बहुत अलग है। हमारे इस देश में इस तरह से कोई लोग मिलता था तो गले लगते थे, हाथे मिलाते थे, लेकिन ये पता न क्या हो गया, कोई ऐसे कर रहा है तो कोई ऐसे कर रहा है, कोई सैनिटाइजर लगा, कोई मास्क लगा है, कोई मास्क लगा है।
ये क्या हो गया? ये हमारे देश में परंपरा नहीं है, बिल्कुल नहीं हो सकती। जब लोग खाना खाने बैठते थे तो हमारे गांव की औरतें पहले आसन लगाती थी, खाना खिला सामने देती थी, सामने बैठते थे, सामने पूछते थे। ये बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का माहौल बना हुआ है। एक दूसरे से दूर क्यों बना रहे हैं? ये क्या हो गया? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये लगता है कि अब हमारे देश में ये परंपरा ऐसी रह जाएगी या कुछ हो पाएगा इसका? आपस में लोग गले मिला के बात करते थे। दूसरे दृश्य में लोग देखे थे कि डॉक्टर्स भाग रहे थे, कहीं ना कहीं डर रहे थे। हमारे सारे देश के डॉक्टर एक्टिव हो चुके हैं, पेशेंट का इलाज कर रहे हैं, बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग के बनाकर। सबसे बड़ी बात, कोरोना से पहले बहुत कम लोग ही जानते थे कि ये सैनिटाइजर्स क्या होते हैं, मास्क क्या होते हैं, सर्जिकल ग्लव्स क्या होते हैं, किट क्या होते हैं। हम इसे आगे क्या होती है या हमारे देश के डॉक्टर पता लगाएंगे, चौथे दिन इससे सब लोग समझेंगे। तो कहीं ना कहीं हमें सोशल डिस्टेंसिंग बनाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है सोशल डिस्टेंसिंग, यूज ऑफ मास्क, सैनिटाइजर, मेडिकल किट, ये सब बहुत ही कंपल्सरी है। ये सब यूज करना हम लोग चौथा दृश्य से समझेंगे कि चौथा दृश्य में क्या होता है। बहुत महान है और इस चीज को हम लोग को देखने को भी मिल गया कि सच में महान थे। कहीं ना कहीं डॉक्टर फर्स्ट क्लास में भाग रहे थे, डर रहे थे, मर भी गए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग बना के काम किए। ये हमारे देश की एक महानता है। सब लोग, हर लोग घर में छिपे थे, घर में सोशल डिस्टेंसिंग का माहौल था, जहां हमारे देश के जवान रोड पर उतरकर, हॉस्पिटल में जाकर, हर जगह कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सावधानियां और लोगों को बचाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे देश में बिना खाए लोग मारे जा रहे थे, उनके भी कहीं ना कहीं समाधान निकला था, जो कि हमारे फोर्स लोग, सैनिक लोग एडवाइस कर रहे थे, दे रहे थे। और हमारे इसी तरह हमारे देश में बहुत लोगों की जान बची थी, बहुत लोग बच गए थे। यही एक बड़ा कारण था। और हमें बात बोलना चाहेंगे कि कोरोना काल में सबसे बड़ा रोल एक फार्मासिस्ट का रहा है। सबसे बड़ा रोल एक फार्मासिस्ट के इसलिए रहा है कि ताकि डॉक्टर सिर्फ डायग्नोसिस ही पता कर सकते हैं, लेकिन एक साइंटिस्ट, फार्मासिस्ट और रिसर्चर का काम है दवा को खोजना, समझना, रिएक्शन करना, कौन सा दवा कैसे बनेगी, कैसे यूज करेंगे। ये बहुत ही फार्मासिस्ट का रोल है, जो हमारे देश के, हमारे कुसुम इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी के फार्मासिस्ट स्टूडेंट ने इस पर फोकस की। और आगे भी मुझे ऐसा उम्मीद है कि हमारे देश में ऐसी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसकी अभी कोई खोज नहीं हो पाई है। ऐसा मुझे उम्मीद है, हमारे देश की उम्मीद है कि हमारे इंस्टीट्यूट के कुछ लोग काम कर पाएंगे, करके कहीं ना कहीं समाधान निकालेंगे। और एक अगर समाधान निकल जाती है तो इसको बहुत बड़ा महात्मा माना जाएगा, क्योंकि जो महामारी से हम लोग झेल रहे हैं, आप लोग देख सकते, इसे हम चौथा दृश्य से समझेंगे कि अब आगे क्या होता है, इसका कोई इलाज निकल पाता है या नहीं।
दुबई हर जगह के साइंटिस्ट इस चीज को रिसर्च करने में लग चुके हैं और कर रहे हैं। और हमारा कुतुबा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी के स्टूडेंट भी रिसर्च कर रहे हैं और हमें ये जान के हमें और हमारे इंस्टीट्यूट के बहुत गर्व है कि कहीं ना कहीं इलाज निकल पाएगा। और इसका रिसर्च लगातार जारी है, आगे क्या हो सकता है हम लोग इसको देखेंगे, समझेंगे। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि रिसर्च कंप्लीट हो ही जाएगा और इसका समाधान निकल जाएगा, क्योंकि हमारे देश के बहुतों ने इस चीज को उम्मीद लगाया है कि इस पर रिसर्च कर पाएंगे। और सबसे बड़ी न्यूज, सबसे बड़ी खबर, हमारे इंस्टीट्यूट के कुतुबा इंस्टीट्यूट के फार्मेसी के एक स्टूडेंट ने कुंभ को मेडिसिन तैयार कर चुके हैं। इसका मतलब कुंभ को मेडिसिन तैयार हो गया है और इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, कब करेंगे, ये हमारे फार्मासिस्ट बताएंगे, फार्मेसी के स्टूडेंट बताएंगे। और इसका बहुत, अगर सबसे बड़ी बात, सबसे खुशी की बात, कि बहुत खुशी की बात यह है कि हमारे इंस्टीट्यूट कुतुबा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी के स्टूडेंट ने कुंभ को मेडिसिन एक रिसर्च किए और आगे क्या होगा और इसको समझेंगे। और सबसे बड़ी बात चाहेंगे कि हमारे कमेटी, हमारे टीम के सदस्य पीछे आ जाए मेरे, हमें एक राष्ट्रगान से प्रस्तुत करना चाहिए। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल सरसिज गंगा। तब सुबह में जागे, तब सुबह आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय, भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की जय, वंदे मातरम। The backbone of medical support in the war of against COVID-19. Their efforts and selfless dedication saving people's lives each and every day. I thank for their invaluable services to our country. I would like to say some lines. हर कोई है यहाँ योद्धा, खाली सबका काम अलग है। हथियार नहीं तो क्या हुआ, मन में विश्वास बहुत है। जो छिड़ गई थी युद्ध ये कोरोना, जो हमने कहता है मुझसे डरो ना, उसे फार्मासिस्ट कहते हैं। मास्क पहनो ना, सोशल डिस्टेंसिंग करो ना, बाहर मत जाओ ना। I would like to say some lines on the behalf of all pharmacists. जब देश में दे आवाज हमें, हम घर की राहें भूल गए। हमें नींद उसी दिन आएगी जिस दिन देखेंगे आबाद तुम्हें। बीमार है जो किस धर्म का है, हमसे न कभी ये भेद हुआ। सरहद पे जो वर्दी खाकी थी, अब उसका रंग सफेद हुआ। मजबूर हुई जब दिल की दुआ, तो हमने दवा से काम लिया। वो नब्ज नहीं फिर हमने दी, जिस नब्ज को हमने थाम लिया। Pharmacists and the doctors are the having relations like our parents, our mother and father. If one of them absent in our life, definitely it seems void. It is easy to get 1,000 prescriptions, but hand to hand get one single remedy. Doctors, pharmacists के बिना ऐसा है जैसे केमिस्ट्री बिना रिएक्शन, कोग्नोसी बिना ड्रग्स,
बायोकेमिस्ट्री बिना ब्लड पैथोलॉजी, एनाटॉमी बिना सेल और फ्लूइडिक्स बिना प्रिस्क्रिप्शन। मैं वो डॉक्टर हूँ जो लोग की सेवा करना अपना धर्म मानती हूँ। जैसे एक डॉक्टर दवाइयों से जान बचाता है, वैसे ही मैं अपने ज्ञान से दवाइयों में जान भरती हूँ। मैं वो हूँ जो डॉक्टर की लिखी पहचान सकती हूँ। मैं और कोई नहीं, मैं फार्मासिस्ट हूँ। Happy World Pharmacist Day to those pharmacists who go to Delhi in those tough times, and each and every pharma students who will become soon pharmacists. एक शेर मेरे उन दोस्तों के लिए जो मेरे साथ इसी प्रोफेशन में हैं। सूटिस के कैप्सूल्स देखे के मास हो जाते हैं हम। फार्माकोलॉजी के क्लासिफिकेशन में आके अटक जाते हैं हम। फार्माकोलॉजी के BSCS एंड यूजेस में पहुंच जाते हैं हम। मेडिसिनल केमिस्ट्री के क्लासिफिकेशन की खिचड़ी बनाते हैं हम। हाइपरटेंशन की ड्रग्स फ्लूइडिक्स में मिला देते हैं हम। इतना सब रटकर ही एग्जाम में पास हो जाते हैं हम। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। Good afternoon, all of you, Principal Ma'am, Chairman Sir, Director Sir, our Chief Guest, and all the guests of honors, and dear students. It is really a very overwhelming experience. I come from law background and I have no clue about what pharmacy is. But after looking at the drama and after looking at the various speeches, it's very overwhelming to know about the different career options, the beautiful career options. If you really go into the depth of this subject, it gives you immense opportunity for everyone to actually go on to and reflect on this particular thing also. तो जब मैं इसके बारे में पढ़ रही थी और जानने का कोशिश कर रही थी कि फार्मेसी क्या है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है, तो मुझे एक चीज़ जो मुझे अट्रैक्ट किया वो ये है कि जैसे कि हर कुछ को लॉ के साथ रिलेट किया जाता है, तो मैंने भी फार्मेसी को लॉ के साथ रिलेट करके कुछ ऐसे यूनिक चीज़ के बारे में समझा। तो मुझे ये लगा कि एक्चुअली लॉयर और फार्मासिस्ट भी एक दूसरे से काफ़ी कनेक्टेड हैं। वो ऐसे कि अगर आप कोई दवा बनाते हैं या फिर आप कोई यूनिक प्रोडक्ट बनाते हैं तो आप उसको पेटेंट करते हैं, और उसके लिए आपको एक लॉयर के पास जाना पड़ता है क्योंकि आप उसके प्रोसेस को पेटेंट करते हैं, उसके प्रोडक्ट को पेटेंट करते हैं। जैसे कि आप बात करें कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे इंडिया से आई है, लेकिन क्योंकि यूएस में पेटेंट लॉ बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट था और वहाँ के लोगों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी थी, तो वो चीज़ उन लोगों ने पेटेंट करवा दी। काफ़ी सारी एंटीबायोटिक्स हैं या फिर जो हम टर्मरिक जो हमारे घर में हल्दी जो कहते हैं कि काफ़ी सारे उपचारों में उसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टर्मरिक को हमने कभी पेटेंट कराने का नहीं सोचा, लेकिन ये चीज़ यूएस में जाके उस चीज़ का पेटेंट हो गया। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं। एंटीबायोटिक्स का भी गुड न्यू है जो हम लोग बहुत ये बहुत नॉर्मल था हमारे लिए, लेकिन वहाँ के लोगों ने जाके इस चीज़ को पेटेंट कर दिया। तो ये चीज़ के बारे में जानना मुझे लगा कि यंग फार्मासिस्ट को बताना ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो अपने राइट्स के बारे में भी जाने। तो अगर आप कुछ यूनिक या नॉवल चीज़ करते हैं जिससे कि आप सोसाइटी एट लार्ज को आप दे सकते हो, तो फिर उस चीज़ के लिए आपको उस यूनिकनेस के लिए आपको पेटेंट करवाने के लिए उस प्रोसेस को भी आप पेटेंट करवा सकते हो एंड अल्टीमेटली उस प्रोडक्ट को भी आप पेटेंट करवा सकते हो। प्रोसेस पेटेंट और प्रोडक्ट पेटेंट में मैं आपको थोड़ा सा एक जनरल आइडिया देना चाहूँगी। ये होता है कि अगर आप एक प्रोडक्ट को, एक दवा को पेटेंट कराते हो, तो वो दवा तक बहुत सारे और दूसरे फार्मासिस्ट पहुँच सकते हैं डिफरेंट प्रोसेसेस से, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत अगर मिक्सचर चेंज किया जाए तो वो प्रोडक्ट डिफरेंट हो जाएगा और प्रोसेसेस भी डिफरेंट हो जाएंगे। तो जिससे क्या होगा कि आपका जो यूनिक आइडेंटिटी है वो आपने खो दिया, जो कि आज के डेट में काफ़ी सारे फार्मा कंपनीज करती है। सन फार्मा या जो बिग कंपनीज होती हैं उनके पास रिसर्च का बहुत सारा पैसा होता है और कॉम्पोजिशन को चेंज करते हुए वो अपने प्रोडक्ट को पेटेंट करवा देते हैं।
लेकिन एक्चुअली अगर आप प्रोसेस पेटेंट करवा लेते हो तो आप अपने पूरे सीक्वेंसिंग को पेटेंट कराते हो। तो ये चीज़ जो है आप अपने यूनिक प्रोसेस को भी रख सकते हो और प्रोडक्ट के बारे में भी आप सोच सकते हो। ये बात ये बहुत ही अच्छा ओकेजन है। चेयरमैन सर और डायरेक्टर साहब सीन देम वर्क सो हार्ड फॉर दिस इंस्टीट्यूशन, क्योंकि मैं उस टाइम से इस इंस्टीट्यूशन को जानती हूँ जब बहुत बेसिक स्टेज में था, और यहाँ पे मैंने देखा है उस टाइम पे कि कितना स्ट्रगल हुआ है एडमिशन से लेके इंस्टीट्यूशन के अफिलिएशन को लेके। तो आई जस्ट वांट टू एंड माय कॉन्वर्सेशन हियर बाय सेइंग दैट डेडिकेटेड टू माय फादर एंड माय अंकल स्पेशली। मुश्किलें दिलों के इरादे आजमाती है, मुश्किलें दिलों के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है, हौसला मत हार गिर कर ओ मुसाफिर, ठोकरे इंसान को चलना सिखाती है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। प्राची मैम ने हम लोगों को काफ़ी इंफॉर्मेशन दिया, इंटरकनेक्ट करते हुए कि किस तरीके से फार्मेसी जो है वो कहीं ना कहीं वकालत से भी जो है कोरिलेट करता है। तो थैंक यू मैम वंस अगेन। Now I would like to call Anushka Bharti to please come on the stage for a dance performance. Now, I would like to call Salvi on the stage for next dance performance. हाय चक्का चक है तू, हाय चक्का चक हूँ मैं, हाय चक्का चक
Who will be the winner of model? We will provide certificate to all. Okay? To Chandan and his group. आज इस वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के अवसर पर उपस्थित हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर अभिषेक अमोद गुप्ता जी, जो सिवान गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, साथ ही साथ हमारे इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर दयानंद शर्मा जी और हमारे फार्मेसी इंस्टीट्यूट की प्रिंसिपल मैम सुप्रिया शर्मा, शैलजा मैम, इंद्रजीत सर, नितेश सर और जितने भी शिक्षकगण हैं, इसके अलावे हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे, सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे, आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो ये परफॉर्मेंस हमारे बच्चे ने, हमारे स्टूडेंट्स ने, जो फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं, उनके द्वारा जो दिया गया, हमारे यहाँ जो चीफ गेस्ट आए हैं वो भी इस चीज़ को देख करके काफ़ी एक्साइटेड हैं और उन्होंने हमें बताया कि नहीं, बच्चों ने मेहनत किया है और ये सुन करके मैं काफ़ी गौरवान्वित हूँ। मुझे काफ़ी गौरव का एहसास हो रहा है कि हमारे बच्चों ने अच्छा काम किया है। जो भी मॉडल प्रेजेंटेशन हो, रंगोली प्रेजेंटेशन हो, ड्रामा का प्रेजेंटेशन हो, सारे फार्मेसी से रिलेटेड थे और बहुत ही सलीके से, बहुत ही तरीके से बच्चों ने दिखाया। ये मैं समझता हूं कि बिहार में बहुत कम ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट होंगे जो इस तरह का कार्यक्रम कर रहे होंगे। मेरा पूरा प्रयास है कि मैं अच्छे से अच्छा इंस्टीट्यूशन बिहार को दे सकूं, फार्मेसी एजुकेशन में मैं लीडर के रूप में काम कर सकूं। इसके लिए चाहे मुझको जितना भी ये करना पड़े, हर तरह के संसाधन और उसको लेकर, और इन सारे चीज़ों के लिए हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो स्टूडेंट हैं, वो आज देख करके मैं बहुत खुश हुआ। आगे भी इस तरह का अगर
इन लोगों का परफॉर्मेंस रहा तो निश्चित तौर पर देश से लेकर विदेश तक हमारे बच्चे जो है नाम करेंगे। मैं अपने तरफ से जो हमारे चीफ गेस्ट हैं अभिषेक अमोद गुप्ता जी और हमारे ग्रामीण जो मुखिया जी हैं, हमारे ग्राम के बड़े भाई हैं, हमारे बड़े भाई लोग आए हुए हैं, उन सभी लोगों को भी धन्यवाद देता हूं। और मैं जो हमारे गुप्ता सर हैं वो हमको हमारे लिए समय निकाले, बहुमूल्य समय निकाल करके हमारे यहाँ आए, इसके लिए मैं उनको विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। और मैं चाहूंगा कि सर भी थोड़ा सा बच्चों को कुछ अपना आकर के बच्चों को कुछ बताएं फार्मासिस्ट डे के बारे में। इन्हीं सारे शब्दों के साथ धन्यवाद। Institute of Pharmacy. Thank you to D.N. Sharma sir, Director of Kusumra Institute of Pharmacy. Thank you Supriya Sharma, Principal in charge, Kusumra Institute of Pharmacy, and all of the faculty. Thank you to all the students. Today is a very important day, and this theme is the Pharmacy United in Actions for the Healthier World. That is chosen by the former PCI President Dr. P. Suresh in a meeting. What is the thinking behind the choosing this line? It's very important. क्या सोच होती है एक लाइन को चूज करने के लिए PCI प्रेसिडेंट? अभी वो फॉरवर्ड होते हैं। The role of pharmacist is not dispensing of drug only. अभी हम देखेंगे कि फार्मेसी का जो वर्ल्ड है थोड़ा सा मूव हो रहा है नई नई चीज़ों को लेकर, खासकर जो बायोटेक्नोलॉजी है उन चीज़ों में इंट्रोडक्शन थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, वैक्सीन को डेवलप करना। और हेल्दियर वर्ल्ड्स में जो हम जाते हैं तो नई नई चीज़ें, जैसे हम देखते हैं ड्रग्स को बनाना, हाउ कैन यू मेक अ ड्रग, हाउ कैन यू एनालाइज अ ड्रग, how can you dispense a drug. It is an ordinary thing. But now the world is changed to the pharmacoeconomics, pharmacoepidemics, clinical research, biotechnology, and all the new things is come in this healthier world. The main motto of to be a pharmacist, to produce a safest drug in a safe way. In a safe way means the doses should be accurate, the administration should be accurate, the route of administration should be accurate. It is very important. And some people is asking what is the एस्पेक्ट ऑफ द फार्मेसी, फार्मेसी के बाद क्या होगा। मैं एक छोटा सा स्टोरी सुनाता हूँ उनको। एक जूते बनाने की कंपनी ने अपने 2 एम्प्लॉय को एक ऐसी जगह भेजा अलास्का जैसे प्रदेशों में 6 महीने के लिए कि आप 6 महीने जाओ, वहाँ के अलग अलग जगह पर जाकर देखो कि हमारे कंपनी का क्या स्कोप हो सकता है। पहला जो आता है कर्मचारी आकर कहता है कंपनी को कि सर मैंने हर जगह देखा वहां के लोग तो जूते ही नहीं पहनते हैं, हमारे कंपनी का कोई स्कोप नहीं है। दूसरा कर्मचारी भी हर जगह घूमता है, वो आता है और कहता है अपनी कंपनी के डायरेक्टर को कि सर वहां कोई भी जूते पहनता ही नहीं है, इसीलिए हमारे कंपनी का तो पूरा ही पूरा स्कोप है।
तो आपको ये तय करना है कि आपका स्कोप कैसे होने वाला है। आज ये दिन जो हम वर्ल्ड फार्मासिस्ट बना रहे हैं, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आप लोगों को कि आप जब यहाँ से निकले तो थोड़ा सा वर्ल्ड चेंज भी हुआ, उसको भी ध्यान में रखना होगा। जब आप कंपनी में किसी रिसर्च पर्पस के लिए, किसी एनालिसिस के लिए जाते हो, तो जरूरी नहीं कि आपके पास हर एक इंस्ट्रूमेंट का नॉलेज होना चाहिए। आप यदि एक इंस्ट्रूमेंट के भी महारत हो गए हो, हासिल कर ली है, तो वही बहुत काफी है। क्योंकि कंपनी वाले आपसे ये नहीं पूछते कि आप बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट को हैंडल कर सकते हो क्या। सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट, वो बस आप में इतना देखते कि आप किसी एक चीज में महारत हासिल कर लिए हो, तो आपके ऊपर वो अपने कंपनी का बोझ डालते हैं। और रही बात सैलरी की, तो सैलरी देने के पहले भी कंपनियां सोचती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा सैलरी आपको दे सकता हूं, बशर्ते आप उनकी डिमांड्स को पूरा करते रहें। तो जैसे वर्ल्ड चेंज होता है, जैसे डिमांड चेंज होती है, उसके लिए हम अपने आप को कैपेबिलिटी बनाते हैं, कैपेबल बनाते हैं, तो हमारी डिमांड पूरे वर्ल्ड में है। आपको पता होगा कि अभी कोविड के बारे में बहुत सारे लोगों ने प्रोग्राम भी किया, बहुत अच्छा भी था। मैडम ने बोला कि हमारे पास एक सीमित संसाधन था, लेकिन हमें नहीं लगता कि ये संसाधन सीमित लगे उनमें देखने में। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था, बहुत ही अच्छी क्रिएटिविटी भी थी आप लोगों के अंदर। मुझे लगता है कि ये कॉलेज आगे चलकर इस क्षेत्र का नाम रोशन करेगा। और आपको पूरे दुनिया में अपने ज्ञान का डंका एक दिन बजाना होगा। हमें पता हो कि हमारी जो भूमि है बड़ी तपोवन भूमि है। लोग यहाँ बहुत वर्षों से रहते हैं, लेकिन कभी महसूस नहीं की कि ये भूमि जहाँ कभी बुद्ध ने, कभी गुरु गोविंद ने इस भूमि में भी कभी कदम रखा है। बहुत कम लोगों को पता है कि बिहार की भूमियों में लगभग उनका हर जगह, सहजानंद सरस्वती भी बाजू में ही, बेटा में उनका भी बड़ा योगदान रहा है। ये भूमि बड़ी तपोवन भूमि है, और यहाँ के जो लोग अपनी ऊर्जा पूरे विश्व को देंगे, क्योंकि बहुत लंबा समय लगा यहाँ पे एक फार्मेसी कॉलेज को आने में, इस क्षेत्र में। और जब फार्मेसी कॉलेज आ ही गया है, तो अब इसकी रोशनी मुझे लगता है कि विश्व के कोने कोने में फैलनी चाहिए। लड़कों ने भी बहुत अच्छा योगदान दिया। मैं चाहता हूं कि आज हालांकि प्रोग्राम था हमारे गवर्नमेंट फार्मेसी इंस्टीट्यूट पटना वाले में भी, मैं वहां पे भी हूं। वहां पे शायद स्वास्थ्य मंत्री और अपर सचिव और मुख्य सचिव का भी आगमन था। पर सर ने कहा कि सर हमारे कॉलेज में लड़कों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया, बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर, आप एक बार आके देखिए। उनके अंदर इतनी उत्सुकता थी कि मैं मना नहीं कर पाया उनको। और सही में मुझे लगता है कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन किया है। तो इसके साथ क्योंकि समय कम है, मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझ जैसे एक मामूली इंसान को एज ए चीफ गेस्ट यहाँ पे बुलाया है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सुधीर। कितनी मेहनत लगी थी, कितनी डांट पड़ी थी, और मुझे लगता है कि हर दिन स्टूडेंट आकर के मुझसे सिर्फ डांट सुनते थे।
मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ डांट सुनते थे। तो मैं इससे रिलेटेड जो भी आपका प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन अभी हुआ है, बस मैं समय कम होते तो उसी पर बोलना चाहूँगी। मैं सबसे बड़ा थैंक्स बोलूँगी मेरे स्टूडेंट को, बहुत बड़ा थैंक्स बोलूँगी। इतना कोऑर्डिनेशन, इतना अच्छे से सारा काम। सेकेंड थैंक मैं बोलना चाहूँगी पंकज सर, चाचा जी, सारे जितने भी नितेश सर, सारी टीम, फैकल्टीज, सभी को मेरा बहुत बड़ा थैंक्स, क्योंकि मैं ज़्यादा के बार बोलती थी ऐसा काम कर देना, तो वो सब मुझे निश्चित तौर पर अच्छे से मिला। एक MPCST करके प्रोग्राम होता है सर, मुझे लगता है वेल अवेयर अबाउट दिस। तो MPCST में एक सृजन करके फेस्टिवल होता है, हर साल होता था वो हमारे कॉलेज की तरफ से, स्टूडेंट उसमें जाया करते थे। और जब स्टूडेंट उसमें जाया करते थे तो हम भी जाया करते थे। बट इतना अच्छा मॉडल प्रेजेंटेशन और पोस्टर प्रेजेंटेशन, जितने भी प्रोग्राम होते थे मैं हर में पार्टिसिपेट करती थी, और आज तक थर्ड भी नहीं आई मैं। और वहाँ एक सर आया करते थे जज करने के लिए, जिसका एक पुस्तक चलता है फार्मेसी में, NK जैन सर, वेल रेनाउंड पर्सनैलिटी हैं, HS गौर से हैं, मध्य प्रदेश का सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, और NK जैन सर को सभी कोई जानते हैं, बहुत रेनाउंड पर्सनैलिटी है, फार्मास्यूटिक्स के बुक पढ़े जाते हैं, और वो वहाँ जज रहा करते थे। तो मैंने उनके पैर छू के एक बार लास्ट में पूछ ही दिया फाइनल ईयर में कि सर M.Pharm में भी मुझे आना पड़ेगा क्या प्राइस के लिए? तो सर बोलते हैं सुप्रिया, फोकस ऑन योर स्टडी, फोकस ऑन योर रिसर्च एरिया। कितने मॉडल प्रेजेंट किए आज तक? मैंने बोला सर 10। कितने पोस्टर प्रेजेंटेशन किए? मैंने बोला सर 20। बोले कहाँ किए? जबलपुर इंस्टीट्यूट से लेकर के सर MPCST से लेकर के HS गौर, सब में एक भी प्राइस नहीं लगता सर। सर बोलते हैं जब मॉडल बना रही थी और जब पोस्टर बना रही थी तो सीखा कितना? कभी अगर ऐसे बोला जाएगा कि लंग्स को पढ़ करके आ जाओ और एक प्रेजेंटेशन दे दो, तो कोई उसको ढंग से नहीं पढ़ता। बट जब उसका मॉडल बनाया जाता है और उसको प्रेजेंटेशन में लाया जाता है तो अपनी जान लगा देते हैं आप लोग। तो इट डजंट मैटर कि आपको क्या प्राइज मिला है, योर इन्वॉल्वमेंट मैटर्स अ लॉट। ठीक है, तो आगे के लिए हमेशा याद रखें कि डू नॉट वर्क फॉर विनिंग पर्पस, वर्क फॉर योरसेल्फ। आपके रिसर्च एरिया को डेवलप करें। जितना ज्यादा जिस इंस्टीट्यूशन का रिसर्च एरिया अच्छा होगा वो उतना ही ज्यादा रिनाउंड होगा और उसके बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल। मैं टोटली थैंकफुल हूँ सर के लिए, डॉक्टर अभिषेक अमोद गुप्ता सर के लिए कि वो यहाँ टाइम निकाल कर आए, वैल्यूएबल टाइम दिया, अपना नॉलेज शेयर किया। एंड आई एम थैंकफुल टू चेयरमैन सर, एज ऑलवेज डायरेक्टर सर, जो कि मुझे लगता है हमेशा ही अरे ऐसे कर लीजिए ना, हो जाएगा बेटा, सब हो जाएगा, सर नहीं होगा, अरे हो जाएगा, सब करवा लेते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल टीम मेंबर्स, जयंत सर, सब जो मुझे दिख रहे हैं सबको थैंक्स। रिस्पेक्टेड चेयरमैन सर, प्रिंसिपल मैम सुप्रिया मैम, और हमारे प्यारे बच्चों जिन्होंने कमाल कर दिया। आज मैं जितना खुश हूं शायद उसका बयान नहीं कर सकता हूं। जिस दिन फार्मेसी खोलने की बात हुई थी भाई, मुझे कुछ नहीं आता था, फार्मेसी क्या है बस सिर्फ सुने थे, और फार्मेसी कॉलेज खोलने हम लोग चले थे। हम लोग 2 भाई निकले फार्मेसी कॉलेज खोलने, और नॉलेज कुछ नहीं, बस बुक में पढ़े, जिन से महसूस होती थी कि वो हमें कुछ बताएंगे उनके पास दौड़े, किसी तरह से करके फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से हमने अप्रूवल को ले लिया। इसमें तो हम सफल रहे। इक्विपमेंट कहाँ मिलेगा, बुक कहाँ मिलेगा, हमें कोई जानकारी नहीं। हम दौड़े भागे, हरियाणा, अंबाला, दिल्ली, कैसे कैसे करके हमने जो लैब बनाई है, हमने जो बुक खरीदी है, वास्तव में हमारा उसका कोई प्रैक्टिकल कोई नॉलेज नहीं, बस थ्योरी लेकर के चले थे कि चलो चलते हैं। रास्ते में जब चलेंगे तो कोई ना कोई ऐसा मुसाफिर जरूर मिल जाएगा जो मुझे मंजिल तक पहुंचाएगा। और आज हमें महसूस हो गया कि शायद अब हमारी मंजिल बहुत दूर नहीं है।
अब हमारे बच्चे पूरे देश में नाम रोशन करेंगे। जैसा कि हमारे चीफ गेस्ट ने कहा कि अब फार्मेसी बिहार में आ गई है, अब फार्मेसी को हम बहुत दूर ले जाएंगे। और अभिषेक आनंद सर से हमें बार बार रिक्वेस्ट है, सर संजोग से हमारे एरिया के हैं, हमारे घर के हैं, वो हमें बार बार आकर के कुछ न कुछ बताएं कि इसमें हमें और क्या करने की आवश्यकता है, वो मैं जरूर करूंगा। और बच्चों, आज जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात हमने प्रिंसिपल मैम के मुंह से सुनी, प्राइज कोई ऐसा बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। प्राइज इसलिए रखी जाती है कि बच्चों में एक अवेयरनेस आए कि चलो उसने प्राइज जीता है तो इस पर हम जीतेंगे, एक कंपटीशन की भावना होती है। बच्चे हमारे सारे मेहनत करते हैं, लेकिन क्या है कि रिजल्ट जो आती है, आपकी यूनिवर्सिटी की रिजल्ट भी आती है, उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है, उसमें भी जो बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, एक ही क्लास में सारे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन उसमें जो बहुत अच्छा मेहनत करता है और 3 घंटा का जो उसका थ्योरी एग्जाम होती है, उस 3 घंटे में आपका कैसा कंसंट्रेशन है, इस पे आपका रिजल्ट डिपेंड करता है। उस समय आप कितना अच्छा लिखते हो, कितना अच्छा पढ़े हो। चलो ठीक है, आज मैं इसी के साथ धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ और आगे हम कुछ का प्रोग्राम करते रहेंगे। थैंक यू। As a guest, sir, I would like to request to Chairman sir, so please come on the stage. Director sir. You will collect your refreshments.